Good morning, everyone. Welcome to Ansarkari. Today, we will do newspaper of 17 December 2020. So, regarding first article, it talks about the conversation between Prime Minister Modi and Putin on telephone. So, what they have discussed, it is written here briefly कि जो डिस्कस हुआ है they have reviewed several aspects of bilateral relationship including energy cooperation, trade and investment, defense and security cooperation and other areas. This is not the first time that they have spoke. They have spoke at SCO summit in Samarkand in September 16, where Modi ji had told Putin that this is not an era of war, which was reflected in G20 Bali Declaration as well. So, regarding this article, this is only the important point. Further, I will mention some other point that is important regarding India and Russia relationship. So, first point क्या है? The first point है कि Russia has become the largest supplier of crude oil to India. Its share has increased from 1% to 20% this year. This shows that India is prioritizing the energy security, and for that it has been collaborating with Russia. Further, other areas of interest such as nuclear energy and also tackling climate change in the Arctic areas, joint study program between Russia and India in the Arctic Circle. Further, third point is related to the defense equipment that has been key area between the Russia and India relationship. India has been importing defense equipment such as Sukhoi 330 MKI and also joint collaborating with Russia on the areas such as ballistic missile S-400 and also joint developing BrahMos 1 and 2. Further, in areas of counter-terrorism, India and Russia is collaborating jointly in Afghanistan to stabilize Afghanistan and also to weed out terrorism in Central Asia, and also joint collaborate on de-radicalization program in Central Asia. Further, India and Russia is both tackling the issue of rise of China as well in Central Asia and also in Iran via stabilizing Iran for promoting Charbahar port. From that, India will be able to less dependent on Pakistan for delivering product for transportation to Afghanistan and Central Asia. India will now transport goods directly to Charbahar port and from that to international north-south corridor to Central Asia and Europe. So these all fields are there where India and Russia is collaborating. Further, there has been growing relationship among people. Trade is also growing, investment is also growing in spite of a sanction on Russia in SWIFT and in other areas. So this shows that India and Russia shares a very strategic interest. Russia is a veto power, so India has a permanent friend in the UNSC Council. Further, Russia considers India as a huge important market and also a geopolitical player, which will help Russia to come out of economic problem due to sanction. तो ये दोनों का आपस में collaboration है. तो next article talks about the summer vacation in Supreme Court, High Court and lower judiciary. Supreme Court works around less than 200 years. Whereas High Court works around 214-220 days and lower courts works more than Supreme Court and High Court. तो
लॉ मिनिस्टर हमारे हैं वो कहते हैं कि दिस डज नॉट पोर्ट्रेस अ वेरी गुड इमेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हायर कोर्ट अमंग द पब्लिक हु आर जस्टिस सीकर। तो ये चीज़ कम होना चाहिए। तो इसी पर पूरा आर्टिकल कि क्या रिमार्क है सुप्रीम कोर्ट का रिगार्डिंग लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी, और साथ ही साथ की जो वेकेशन है वो क्यों इम्पोर्टेंट है वो भी आगे हम लोग पढ़ेंगे एडिटोरियल सेक्शन में। फर्दर ओनली वन पॉइंट इज देयर दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर सिविल सर्विस प्रीलिम्स, दैट इज सुप्रीम कोर्ट is to protect the liberty of the citizen. It is founded on the constitutional principle in part 3 of constitution. Part 3 deals with the fundamental right. उसमें तो आर्टिकल 32 है वो talks about judicial power, and article 136 also talks about judicial power given to the judiciary by the constitution to protect the liberty of the citizen. Then next article talks about women's safety after 10 years of Nirbhaya gang rape case in Delhi. तो ये जो पूरा आर्टिकल है, ये पूरा 4-5 आर्टिकल है, इसका मैं सिर्फ क्रक्स बताऊंगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये जो पूरा आर्टिकल है, जो नीचे वाला पुलिस प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग है, एक केस से रिलेटेड है जो भी हुआ है, और रिगार्डिंग इंटरव्यू ऑफ सेवरल अदर पीपल। फर्दर दिस आर्टिकल talks about the trauma that has been faced by the victim and also the family of the victim regarding rape cases, POCSO etc. तो जो मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है वो पहला है कि जो निर्भया कांड हुआ था 2012 में, निर्भया गैंग रेप केस, आफ्टर दैट सेंटर इंट्रोड्यूस निर्भया फंड टू हेल्प वीमेन इन डिस्ट्रेस and also to provide infrastructure, manpower to help them and to create a safer space. लेकिन 10 साल बाद भी ऐसा पता चला है फ्रॉम डेटा कि ओनली हाफ ऑफ द एलोकेटेड अमाउंट हैज़ बीन यूटिलाइज्ड, फर्दर हाफ इज सिटिंग आइडल, मतलब उसको यूटिलाइज नहीं किया गया। कहाँ से पता चला है? तो मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से पता चला है कि 9,000 करोड़ में मात्र 3,000 करोड़ को यूज किया गया है। फर्दर उसके बाद हम लोग का सेकेंड पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो है कि फंक्शनल्स, हाँ, जो सखी सेंटर है। सखी सेंटर क्या है? सखी सेंटर इज ए प्लेटफॉर्म वेयर मेडिकल, लीगल एंड पुलिस सर्विसेज, काउंसलिंग सर्विसेज सपोज टू बी प्रोवाइडेड टू विमेन इन अर्बन एंड रूरल एरियाज, ताकि उनको सपोर्ट मिले, वो फील नहीं करे, मतलब सेफ्टी का इशू जो भी है उसको टैकल करे सखी सेंटर। लेकिन जो सखी सेंटर जो 758 बनना था, जो सैंक्शन हुआ था, उसमें सिर्फ और सिर्फ 708 फंक्शनल है। तो ये दो डेटा है। एंड रिगार्डिंग अदर डेटा, दैट इज ओनली 41% ऑफ द टोटल सैंक्शन रिगार्डिंग विमेन सेफ्टी हैव बीन यूज्ड इन बिहार, 48% in Jharkhand, 55% in Madhya Pradesh and 52% in Maharashtra. This showcases that not only center is underutilizing the fund but also the states. तो जो सिविल सेफ्टी है वो प्राइम इम्पोर्टेंस होना चाहिए, उन्हें प्रायोरिटी मिलना चाहिए एक्सपेंडिचर में, जो अभी तक नहीं हो पाया है। फर्दर दूसरा जो पॉइंट है कि देयर हैज़ बीन इंक्रीज इन रेप केसेस बिटवीन 2020 एंड 2021 फ्रॉम द डेटा ऑफ NCRB ऑफ दिल्ली। ये है तो दिल्ली रिलेटेड है, तो हो सकता है आप लिख सकते हैं या नहीं भी लिख सकते हैं उसमें, लेकिन पहला जो 2 पॉइंट है रिगार्डिंग निर्भया फंड याद कर लीजिए, एंड सेकंड पॉइंट सखी सेंटर, वो इम्पोर्टेंट है। देन नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट द बिल टू गिव SC स्टेटस टू हिमाचल हथीस। हथीस एक ट्राइबल कम्युनिटी है इन हिमाचल प्रदेश, हु लिव्स इन ट्रांसगिरी एरिया। दे हैव बीन इंक्लूडेड इन शेड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट and it has been passed by Lok Sabha. After the Himachal Pradesh government requested the center to include these community in ST list. किसके अंडर में? by Constitutional Scheduled Tribe Order 1950. तो ये रहते हैं उत्तराखंड बॉर्डर में, और वो ST
कम्युनिटी के अंदर है ही ऑलरेडी उत्तराखंड में, लेकिन हिमाचल प्रदेश में नहीं थे। तो अभी लोकसभा बिल में इन्हें इंक्लूड किया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है बस। तो ये नाम इम्पोर्टेंट है कि हती जो ट्राइब है वो कहाँ पर रहते हैं, तो हिमाचल और उत्तराखंड बॉर्डर में रहते हैं। दिस कैन कम इन प्रीलिम्स। फर्दर नेक्स्ट पॉइंट टॉक्स अबाउट छोटा आर्टिकल, ये आर्टिकल नहीं, ये फोटो है। तो बूस्ट द मैरीटाइम कैपेबिलिटी ऑफ द इंडियन आर्मी P15B स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, वो उसको इंक्लूड किया गया। तो P15B पूछ सकता है कि क्या है ये, सबमरीन है, गाइड डिस्ट्रॉयर है, क्या है वो, एयरक्राफ्ट कैरियर है, कॉर्वेट है, तो ये डिस्ट्रॉयर है। देन उसके बाद इम्पॉर्टेंट नहीं है कुछ भी। द नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट पुशबैक। ये एक एडिटोरियल है तो इसलिए खाली इम्पोर्टेंट पॉइंट खाली नोट करना है, बाकी इसका ओपिनियन होता है इसमें। तो ये कहना चाह रहा है कि सरकार जो बिल पास करने जा रहा है, मतलब रिगार्डिंग NJAC नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, फिर से हो सकता है शायद पास, पता नहीं अभी तक। लेकिन वो पहले सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिक्लेयर किया था नल एंड वॉइड बाय गिविंग द फैक्टर दैट NJAC इज वॉलेटिंग द प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। तो ये बोलना चाह रहे हैं, ये बोल रहा आर्टिकल कि गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट ने जो पास कर रहे हैं उसको अपोज करना चाहिए वोट बाय जुडिशरी एंड अपोजिशन। तो उसका रैशनल क्या है, तो रैशनल का 2 पॉइंट है इसमें जो इसने दिया है कि जो 2 एमिनेंट पर्सन जो भी कमेटी में बैठेंगे रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, तो 2 एमिनेंट पर्सन लिखा हुआ है, तो वो कौन हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि उनके पास नॉलेज ऑफ लॉ हो या ना हो। तो फर्दर अगर जो भी एमिनेंट पर्सन बैठ रहे हैं उनके पास होना चाहिए, जो अभी ऐसा प्रोविज़न नहीं है। फर्दर जो भी रिकमेंडेशन होगा कि अगर अपॉइंटमेंट के लिए अगर 2 पर्सन भी डिसएग्री करेगा तो उनके पास बेसिकली वेटो पावर रहेगा। तो फाइनल से जो होगा अपॉइंटमेंट पर वो एग्जीक्यूटिव के पास रहेगा, लेकिन जो जुडिशरी है उसका फाइनल से होना चाहिए। तो ये 2 पॉइंट है, तो इसको लिख सकते हैं इन द एरिया ऑफ क्रिटिसिज्म फॉर NJAC। फर्दर कोटा के रिलेटेड आर्टिकल है where suicide has been taking place. We have talked about this a day before yesterday. वहाँ पर था कि एग्ज़ाम के कारण जो भी एंजाइटी है स्टूडेंट के अंदर बढ़ रहा है, प्लस मेंटल कैपेबिलिटी कम हो रहा है आफ्टर कोविड। तो ये क्यों हो रहा है, इसका रीज़न है कि हाईली कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, ओवर पॉपुलेटेड सोसाइटी के कारण जो एक एंजाइटी है, एक परफॉर्मेंस प्रेशर है, वो बढ़ते जा रहा है, जो उससे स्ट्रेस बढ़ते जा रहा है स्टूडेंट के अंदर में। तो ये सब इशू है। फर्दर ये बोलना चाहिए, क्रिटिक कर रहा है जो भी IIT प्रोफेसर को कि रैदर देन यंग एस्पिरेंट हु आर ज्वाइनिंग बिकॉज ऑफ द कल्ट रिलेटेड विद द टॉपर्स, तो IIT जो प्रोफेसर है उनको मोटिवेट करना चाहिए यंगर एस्पिरेंट को, ताकि उनके द्वारा यंगर एस्पिरेंट मोटिवेटेड हो IIT ज्वाइन करने के लिए। दे शुड एजुकेटेड द यंगर एस्पिरेंट कि वाई IIT इज़ इम्पोर्टेंट, वाई रिसर्च इज़, व्हाट ऑल रिसर्च आर टेकिंग प्लेसेस इन IIT एंड एक्सेट्रा। ऐसा नहीं हो कि टॉपर के कारण ज्वाइन कर रहे हैं, ये बोलना चाह रहे हैं आर्टिकल। सेकेंड पॉइंट इज कि जो कोटा फैक्ट्री है, वो फैक्ट्री क्यों नाम है, क्योंकि वो एक फिनिशिंग लाइन है जहाँ पर प्रोडक्ट रॉ मटेरियल से एकदम हाई फिनिश्ड प्रोडक्ट जो सैलरी अट्रैक्ट करता है, और फिर ह्यूज पैकेजेस के भीड़ में लोग दौड़े आ रहे हैं। तो ये बात कर रहा है कि हमें रिसर्च बेस या फिर क्वेश्चन बेस सिस्टम होना चाहिए कि यहाँ क्वेश्चन पूछ सके, लर्निंग बढ़ सके, लेकिन ऐसा नहीं है, मगिंग एंड एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करके घुसते हैं। तो ये क्रिटिक कर रहा है। दूसरा थर्ड पॉइंट इज कि जो हम लोग का पॉलिटिकल क्लास है, दे आर ऑल्सो अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम बट दे आर नॉट डूइंग मच रिगार्डिंग दैट। तो वो हम लोग को उस पर बात विचार करना चाहिए। देन नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट
ब्रेक थ्रू इन द फ्यूजन एनर्जी। तो अभी हाल फिलहाल में अभी एक ब्रेक थ्रू हुआ है जहाँ पर जो यूएस के साइंटिस्ट एट नेशनल इग्निशन फैसिलिटी इन कैलिफोर्निया हैज़ अनाउंस्ड दैट दे हैव बीन एबल टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम फ्यूजन। लेकिन जो प्रॉब्लम है कि जो रिएक्टर जो यूज़ किया एनर्जी टू प्रोड्यूस द एनर्जी फ्रॉम फ्यूजन, दे अप्रॉक्सीमेटली यूज्ड मोर एनर्जी देन प्रोड्यूसिंग। तो अभी फ्यूजन के लिए पर्सपेक्टिव से हम लोग ने एक ब्रेक थ्रू अचीव किया है, लेकिन क्या वो कमर्शियली वाइबल है लॉन्ग टर्म में? क्या वो इसको यूज़ कर सकते हैं टू प्रोड्यूस चीपर रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन लॉन्ग टर्म में? वो अभी तक नहीं है। ये पूरा वही बताना चाह रहा है कि वो हो सकता है कि 20-30 ईयर्स डाउन द लाइन वी विल एबल टू प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम फ्यूजन फर्दर। नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट क्लैश बिटवीन चाइना एंड इंडिया एट अरुणाचल प्रदेश, फ्रॉम लद्दाख टू अरुणाचल प्रदेश। जो भी इंडिया और चाइना के बीच में क्लैश हो रहा है अलॉन्ग द इंडियाज बॉर्डर, उसके ऊपर आर्टिकल है। तो रैदर दैन गोइंग थ्रू ईच लाइन, important points I will mention here, you can read all the points here। कि अभी तक में 400 बॉर्डर वायलेशन हुआ है बाई चाइनीज PLA और इट हैज़ क्रॉस्ड 600 इन 2019 फर्दर। उसके बाद बताना चाह रहा है कि ये पहला बार नहीं हुआ है, पहले भी हो चुका है, दोकला में हो चुका है 2017 में, उसके पहले लद्दाख में हुआ था 2014 में, फर्दर गलवान में हुआ 2020 में, वेयर आवर 20 आर्मी पीपल हैव बीन मार्टेड। तो ये जो इशू है LAC है वो बोन ऑफ कंटेंशन है। तो LAC है वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, दैट हैज़ बीन डिमार्केटेड बाई मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन डिमार्केट्स चाइना एंड म्यांमार बॉर्डर, ये है। और जो अरुणाचल प्रदेश वाला है वहाँ पर आर्मी का जो पेट्रोलिंग ज़्यादा है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा वहाँ पर है, प्लस आर्मी इज़ मोर विजिलेंट इन अरुणाचल एंड नॉर्थ ईस्ट एरियाज। तो वहाँ पर हम लोग आसानी से टैकल करते हैं। फर्दर 1993 में एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसका कि 1993 में Narasimha Rao visited Beijing and first border treaty called Peace and Tranquility Agreement was signed. After that, 3 more border treaty were signed in 1995, 2005 and 2012. लेकिन तभी भी जो भी डेफिनेशन है LAC का वो अभी तक नहीं हो पाया है कि LAC है क्या, कैसे हम लोग डिमार्केट करें आपस में, कौन कौन सा पॉइंट मेरा है या फिर तुम्हारा है, वो अभी तक हो नहीं पाया। तो इसलिए देयर हैज़ बीन सेवरल वॉयलेशन by the Chinese side in the LAC because they are thinking that this part of land is theirs। और ये इशू होता है। जो मॉ का डॉक्ट्रिन था, बोलना चाह रहे हैं कि जो मॉ का डॉक्ट्रिन था that was armed coexistence, कि आर्म्ड रहेंगे लेकिन एग्जिस्ट करेंगे आपस में। लेकिन जो इंडिया का है वो डिफरेंट है। फिर है कि स्ट्रॉन्ग ग्राउंड पोस्चरिंग, ये है इंडिया का न्यू स्ट्रैटेजिक डॉक्ट्रिन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट किया जा सकता है बस। देन नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट इवोल्यूशन ऑफ डिजिटल स्पेस एंड हाउ द पॉलिसी मेकर्स एंड लॉ मेकर्स हैव क्या बोलते हैं हैव बीन लेफ्ट बिहाइंड इन मेकिंग लॉ एंड पॉलिसीज रिगार्डिंग टू रेगुलेशन ऑफ द स्पीड इवोल्यूशन ऑफ डिजिटल स्पेस। डिजिटल स्पेस जो है, जो IT क्षेत्र है, वो जल्दी से इवॉल्व कर रहा है, ताकतवर हो रहा है और जल्दी से फैल रहा है। फॉर एग्जांपल गूगल हो गया, टेस्ला हो गया, ट्विटर हो गया, दे कैन गिव न्यूज़ वेरी स्पीडली। और साथ ही साथ है कि उनका जो अप्रोच है रिगार्डिंग डिजिटल स्पेस है वो बढ़ते जा रहा है, चेंज हो रहा है, कॉम्प्लेक्स हो रहा है। लेकिन जो लॉ मेकिंग है वो थोड़ा स्लो प्रोसीजर है, तो दे कैनॉट कीप अप विद द स्पेस ऑफ द इवोल्यूशन ऑफ द डिजिटल स्पेस। तो इसके हिसाब से आर्टिकल दिया हुआ है कि ईज़ ऑफ लिविंग बढ़ते जा रहा है डिजिटल टेक्नोलॉजी के आने द्वारा। वी कैन कम्युनिकेट लॉन्गर एंड
विथ मोर पीपल एट द सेम टाइम। फर्दर कि जो इंटरनेट एक्सेस है वो बढ़ते जा रहा है रिगार्डिंग वेरियस गेटवे, फ्रॉम एग्जांपल सैटेलाइट टेक्नोलॉजी जो स्टारलिंक का है, फिर टेलीकम्युनिकेशन, गीगा फाइबर एक्सेट्रा। तो उसमें कंपटीशन बढ़ना चाहिए। अगर कंपटीशन नहीं होगा तो मोनोपोली के कारण जो प्राइस है मैकेनिज़्म फिर और जो कंपटीशन हो कम होगा, जिसके कारण दिक्कत होगा यूज़र को भी और कंज्यूमर को, और यूज़र कंज्यूमर और साथ ही साथ कंपनी को भी। द पॉलिसी ऑफ नेट न्यूट्रलिटी ये इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो भी टेलीकॉम नेटवर्क है शुड बी न्यूट्रल टू और इन्फॉर्मेशन दैट हैज़ बीन ट्रांसमिटेड थ्रू इट। मतलब कि अगर फ्लिपकार्ट अगर प्लेटफॉर्म है तो ये डिफरेंट है। मतलब अगर जियो अगर प्रोवाइड कर रहा है इंटरनेट एंड अदर दैट अगर एयरटेल प्रोवाइड कर रहे हैं इंटरनेट, तो जियो का जो अपना सर्विस है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो ज़्यादा फास्टर रहे, जियो सिनेमा ज़्यादा फास्ट चले और लेकिन उसी में अगर आप अमेजन प्राइम देख रहे हो स्लो चले। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे कंपटीशन कम होगा और साथ ही साथ इट इज़ अनहेल्दी प्रैक्टिस इन द कॉर्पोरेट सेक्टर, इट इज़ अनएथिकल ऑल्सो। तो इसके रिगार्डिंग नेट न्यूट्रलिटी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, सच दैट दे शुड ट्रीट ऑल कम्युनिकेशन पासिंग थ्रू देम इक्वली independent of their content application. So it has ensured that there is a democratic stance against big technology. Further, India is the largest consumer of wireless internet with over 800 million users, and as we are moving towards 5G, there has been increase in क्या बोलते हैं penetration of data, penetration of internet in the lower levels also, in the interiors of the villages also. So there has to be developed a code of conduct and regulation so that the new technology can be regulated. लेकिन ऐसा अभी हो नहीं रहा है। कैसे? क्योंकि अभी गूगल और एप्पल है वो दे एंजॉय लार्ज एरिया, मतलब लार्ज पोर्शन ऑफ द शेयर इन द ऐप स्टोर मार्केट। जो भी अगर ऐप डेवलपर अभी हैं उनको एक बेसिकली जो कार्टेल है गूगल और एप्पल का, उससे डील करना पड़ता है। अगर आप ढंग से इसको पैसा नहीं देंगे, ढंग से आपको कट नहीं देंगे, तो आपका एप्लीकेशन ऑनलाइन नहीं शो करेगा। तो ये सब इशू हो रहा है अभी हाल फिलहाल में। फर्दर वेरियस प्रैक्टिसेस सच एज डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म हैज़ कम इनटू क्वेश्चन लेटली, कि जो अमेजन है या फिर गूगल है, दे आर चेंजिंग देयर पॉलिसी ओवरनाइट, दे आर चेंजिंग देयर पॉलिसी आर्बिट्रेटरी विद रिगार्डिंग टू एडवर्टाइजमेंट, ऐप पॉलिसी एक्सेट्रा। उससे क्या हो रहा है, इशू हो रहा है बाकी जो रिटेलर को और भी जो बिजनेस ओनर को कैसे वो उसे डील करे। तो इसके कारण हाल फिलहाल में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, दे हैव फाउंड दैट गूगल प्ले स्टोर पेमेंट पॉलिसी वॉज अनफेयर एंड डिस्क्रिमिनेटरी एज पर 2020 जो बिलिंग पॉलिसी था। फर्दर एप्पल स्टोर है वो भी दे चार्ज अराउंड 30% ऑफ कमीशन। फर्दर एप्पल एंड गूगल डोमिनेट द ग्लोबल मार्केट शेयर विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेटिंग सिस्टम। दिस बिकम्स वेरी प्रॉब्लमेटिक फॉर द डेवलपर्स बिकॉज दे एक्ट लाइक गेट कीपर एंड मेक चेंजेस टू द एप्लीकेशन वेरी मतलब आर्बिट्री, वेरी हेस्टली एक्सेट्रा। तो इसको टैकल करने के लिए बेसिकली यूरोपियन यूनियन ने एक लाया है एक्ट दैट इज़ कॉल्ड अ डिजिटल मार्केट एक्ट, जो 2023 में इम्प्लीमेंट होगा। इट प्रोहिबिट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हार्मफुल एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस बाय लार्ज डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो इसके जो ये सब जो एग्जाम्पल है, तो ये से हम लोग सीखने मिलता है कि इंडिया गवर्नमेंट को भी ऐसा कुछ लाना चाहिए लॉ, ताकि जो अनफेयर प्रैक्टिसेस है, कंपटीशन के खिलाफ जो प्रैक्टिसेस है उसको टैकल कर सके। और साथ ही साथ फॉर एग्जांपल इंडिया आल्सो हैज़ ब्रॉट आउट मेनी ऐप एंड प्लेटफॉर्म सच एज यूपीआई, डिजी लॉकर, कोविन, विच रुपे भी तो है, रुपे दैट आर टैकलिंग द इशू ऑफ मोनोपोलीज, duopolies एंड ऑल्सो द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस इन द कंट्री। तो ये सब है पूरा। Then next point talks about the transition and the requirement of financial flow। तो ये बताना चाह रही है आर्टिकल कि जो भी फाइनेंस सच एज $100 बिलियन जो भी कमिटमेंट किया गया है बाय द डेवलप्ड कंट्रीज, अगर वो मिल भी जाएगा टू द
developing countries and underdeveloped countries, that will be inadequate to meet the climate change. क्यों? क्योंकि लॉस एंड डैमेजेस है ऑफ ए ग्रीन क्लाइमेट फंड है, उसको कौन मॉनिटर करेगा? ऐसा कोई प्रोविज़न अभी तक नहीं है. साथ ही साथ जो डेवलपमेंट कंट्रीज़ है और डेवलपिंग कंट्रीज़ है, दे नीड मोर मनी टू give they need more money for transition to clean energy than developed countries. मतलब कि पाकिस्तान को ज़्यादा कॉस्ट करेगा टूवर्ड्स द उसको ट्रांजिशन करने में टूवर्ड्स द ग्रीन एनर्जी दैन फिनलैंड या नॉर्वे. ये बोलना वही चाह रहा है पूरा आर्टिकल. फर्दर नेक्स्ट पॉइंट, हाँ, नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट द वेकेशन इन द कोर्ट. तो इसमें मैं एक्सप्लेन करूँगा एक सिंपल भाषा में कि ये इशू क्या है. इशू है वेकेशन का, कि जो भी सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, दे टेक अ लॉन्गर वेकेशन. सच एज सुप्रीम कोर्ट टेक्स वर्क्स अराउंड 193 days in a year, whereas हाई कोर्ट वर्क्स अराउंड 210 days एंड ट्रायल कोर्ट अराउंड 245 days. तो उससे क्या होता है कि जो केस का पेंडेंसी है सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज़्यादा हाईएस्ट है. कैसे? कि 34 जजेस के अलावा जो सुप्रीम कोर्ट का मैक्सिमम अभी तक में जजेस का अलॉटमेंट है, तो वो 34 है, अपॉइंटमेंट 34 है. लेकिन अभी तक में हाईएस्ट उनका केस का पेंडेंसी है, सालों साल चलता है. फर्दर द केसेस ऑफ द पेंडेंसी ऑफ द केसेस हैज़ हिट 2 crore मार्क इन 2014, कंबाइनिंग ऑल द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड ट्रायल कोर्ट. और बाकी सब जो प्रैक्टिसेस है, जैसे बाकी सब जो लोग हैं, जैसे एम्प्लॉयर है इन द गवर्नमेंट एरियाज एंड ऑल्सो द प्राइवेट सेक्टर, दे वर्क मोर देन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड ट्रायल कोर्ट. तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो कॉलोनियल प्रैक्टिस है बाय द सुप्रीम कोर्ट, इट नीड्स टू बी अबॉलिश्ड, या फिर कम होना चाहिए. वीकेंड भी कम होना चाहिए, या फिर वेकेशन भी कम होना चाहिए. तो लॉ मिनिस्टर ने कहा है कि देयर इज अ ग्रोइंग फीलिंग अमंग द पीपल ऑफ इंडिया दैट लॉन्ग वेकेशन इन विच कोर्ट इज ऑब्टेनिंग इट इज नॉट सुटेबल फॉर जस्टिस सीकर. फर्दर ये बता दिया मैंने. हाँ, 2000 में जस्टिस मलिमत कमेटी बैठा था, तो they recommended that there needs to be a reform in criminal justice system by suggesting that period of vacation should be reduced by 21 days. Further, in 2014, Supreme Court notified that the sum of summer vacation should not exceed 7 weeks. तो ये है. तो इसका जो काउंटर पॉइंट क्या है कि क्यों होना चाहिए वेकेशन, तो वो बात कर रहा है कि इसमें रिग्रेस और लॉन्ग वर्किंग आवर होता है इन लीगल फर्टर्निटी में. दे वर्क मोर देन 10 hours a day. फर्दर दे डू नॉट टेक हॉलीडे एज कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट सेक्टर. तो ये जो लगातार काम करने से एक जो प्रेशर होता है, वर्क प्रेशर हो गया, और जो मेंटल प्रेशर, फिजिकल प्रेशर होता है, वो रिड्यूस करने के लिए छुट्टी लेना ज़रूरी है. तो अभी बात इस पर चल रहा है, और फिर आने वाले वक्त पर इस पर कुछ तो काम होगा. फर्दर नेक्स्ट आर्टिकल टॉक्स अबाउट द इशू ऑफ पुअर क्वालिटी एंड टॉक्सिक एल्कोहल दैट हैज़ किल्ड अराउंड मोर देन 60 people इन बिहार. कि ये हुच क्या है? हुच इज़ अ चीप पुअर क्वालिटी एल्कोहल मेड इन अ फ्रूगल मैनर. मतलब कि लोकली मेड होता है, ये कोई डिस्टिलरी नहीं होता है जहाँ पर बनाया जा रहा है, कोई इंडस्ट्री नहीं, ये लोकली बनाया जा रहा है. तो लोकली, और इसमें क्या फ़र्क होता है कि उनके पास टेम्परेचर कंट्रोल नहीं होता है, सिस्टमेटिक तरीके से एक प्रोसेस नहीं होता है, एडल्ट्रेशन होता है, इसके कारण लोग ज़्यादा मरते हैं. तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ सिंपल टोन दैट जो डिस्टिलेशन फर्मेंटेशन जो यूज़ होता है, दे प्रोड्यूस फर्मेंटेड मिक्सचर, दे नीड टू बी बॉइल्ड एज fermentation creates alcohol, but more sugar is consumed by the yeast, it becomes efficient and finally stops. तो जो डिस्टिलेशन पाइप है उसमें बोथ इथेनॉल भी जाता है और साथ ही साथ मेथनॉल भी जाता है. एंड मेथनॉल इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द बॉडी.
because synthesis of methanol produces formaldehyde which causes toxicity in the body, और उसके कारण किडनी डैमेज हो जाता है. फर्दर जो एडल्ट्रेशन भी यूज होता है ताकि ओवर बॉइलिंग ना हो. तो क्या क्या एडल्ट्रेट उसमें मिलाया जाता है? ऑर्गेनिक वेस्ट, बैटरी एसिड, मेथनॉल एक्सेट्रा विच आर वेरी टॉक्सिक फॉर द ह्यूमन बीइंग. तो इसके कारण डेथ हो जाता है कभी कभार. देन नेक्स्ट आर्टिकल talks about forex reserve that has increased to around $2.9 billion. Then next article talks about windfall profit tax. So what is windfall profit tax? The windfall profit tax is a tax that is levied by the government on any price that is above the threshold limit. मतलब कि एक इंडस्ट्री है, उसका इकोनॉमिक कंडीशन है कि एक प्रॉफिट चल रहा है. जैसे को मान लीजिए अगर 30 रुपया में अगर कोई चीज़ बेच रहे हैं तो 35 रुपया अगर बढ़ रहा है, या फिर अगर 40 रुपया हो जा रहा है, या फिर 50 हो जा रहा है, 60 हो जा रहा है, तो गवर्नमेंट थिंक्स दैट मोर देन 60 जो 30% एक्स्ट्रा प्रॉफिट है उस पर भी टैक्स कलेक्ट करे कहते से. तो ये विंडफॉल टैक्स है. तो अगर आपको इंग्लिश में बताना चाहे तो विंडफॉल टैक्स या टैक्स लेवाइड बाय द गवर्नमेंट अगेंस्ट सर्टेन इंडस्ट्री. जहाँ सर्टेन इंडस्ट्री मतलब ऑयल हो गया या फिर कुछ और मटेरियल्स जहाँ पर जो उसका जो प्रॉफिट है वोलेटाइल है, जहाँ पर जो इंडस्ट्री उसका एक्सपीरियंस है अबव एवरेज प्रॉफिट, इतना एवरेज होना चाहिए प्रॉफिट लेकिन उससे ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो गवर्नमेंट भी सोचती है कि वो भी ज़्यादा प्रॉफिट करे, तो वो विंडफॉल टैक्स है. तो जैसे क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल में वोलेटाइल प्राइस के कारण ज़्यादा प्रॉफिट होता है कंपनीज़ को, तो गवर्नमेंट भी चाहती है कि ज़्यादा प्रॉफिट करे टैक्स कलेक्शन में. तो जो एक्स्ट्रा टैक्स है वो बढ़ाया गया था, तो अभी इसको कट किया गया. द इंडिया फर्स्ट इम्पोज विंडफॉल टैक्सेज ऑन July 1st, दैट इज टैक्स सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ एनर्जी कंपनीज. तो अभी घटा दिया गया है फ्रॉम 8 to 5% in diesel and from 5 to 1.5 liter in ATF. That's all for today. Thank you.